Hello, namaste everyone. Hope all of you are well. This is the second lecture of S block elements. In the lecture number 1, we have discussed about what is S block elements, electronic configuration of S block elements, and ionization enthalpy and hydration enthalpy of S block elements. And I have informed you in this video, I will specially clear about the physical, chemical properties and uses of group number 1. So first of all, group number 1 means alkali earth metals. The elements present in group number 1, which is known as alkali earth metals, are from lithium to cesium. Means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Neither hydrogen nor francium is a alkali earth metals. Now second, in the physical properties, the things which we should study like symbol, what is the electronic configuration, what is atomic mass, atomic number. After that we will study about ionization enthalpy, hydration enthalpy, melting point, boiling point, metallic radius, ionic radius, density, and many more occurrence in the lithosphere and many more things. But the things which can be accommodated in this whiteboard, I have written the things. As you can see, the lithium atomic symbol is Li, sodium Na, because the Latin name of sodium is natrium. So instead of Na, the sodium, Indian name sodium, IUPAC name, not Indian, but the Latin name is natrium, so that's why we denote it as a Na. Potassium, rubidium, cesium, francium. Atomic number of lithium 3, atomic number of sodium 11, atomic number of potassium 19, atomic number of rubidium 37, cesium 55, and francium 87. What are the mass number of the elements of lithium? 7, sodium 23, potassium 39, rubidium 85, cesium 132, and francium 223. Electronic configuration, if I discuss about, so we can write as in this form: core form, helium 2s1, the electronic configuration of lithium, the electronic configuration of sodium as in the form of neon 3s1, the electronic configuration of potassium as in the form of argon 4s1, similarly krypton 5s1, xenon 6s1, and radon 7s1. So first of all, I would like to ask you, do you have any doubt related till here? Now the most important questions like ionization enthalpy and hydration enthalpy. What is ionization enthalpy? As I had informed you in the lecture number 1, that the minimum energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential or ionization enthalpy. So to remove one electron from the lithium gaseous atom, we require 520 kilojoule per mole. Second, in the sodium we require 496 kilojoule per mole. After that, in the potassium we require 419 kilojoule per mole. In the rubidium we require 403 kilojoule per mole. If we talk about the cesium, we require 376 kilojoule per mole, and francium we require 375 approximately kilojoule per mole. If I talk about the hydration enthalpy, then similarly if we go through, then 506 of lithium, 406 of sodium, 330 of potassium, 310 of rubidium, 276 of cesium, and francium, since it is not an alkali earth metal, we do not have to calculate it. But remember, the ionization enthalpy and hydration enthalpy is represented in the SI unit called kilojoule per mole. Now if I talk about the melting point and boiling point, as I have represented on this whiteboard, you can see here the melting point of lithium is 454 kilojoule per mole, the melting point of sodium 371 kilojoule per mole. After sodium, potassium is 336, after potassium, rubidium 312, and cesium 302. Similarly, boiling point of lithium 1615 kilojoule per mole, sodium 1156 kilojoule per mole, potassium 1032 kilojoule per mole, rubidium 961 kilojoule per mole, and cesium 944 kilojoule per mole. Now what is this ionization enthalpy? You know very well. Melting point also you know very well. Boiling point also you know very well. Now the metallic radius and ionic radius. Metallic radius, since they all are metals, what will be their atomic radius? That are 152 picometer of lithium, 186 picometer of sodium, 227 picometer of potassium, rubidium 248 picometer, cesium 265 picometer, and francium it is not given, because you know very well, as I have informed you, that we do not have to understand about the
hydrogen and francium in this alkali earth metal. Now we are moving towards the next thing, that is ionic radius. After metallic radius, if I talk about ionic radius, the ionic radius of lithium plus, that is 76 picometer, sodium plus 102 picometer, potassium plus 138 picometer, rubidium 152 picometer, cesium 167 picometer, and francium 180 picometer. So these are the ionization enthalpy. Now question is about occurrence in lithosphere. So if I talk about that, what is the percentage of lithium which is occurring into the atmosphere, that is 18, sodium 2.27, sodium 2.27, 1.84 potassium, 78.12 rubidium, 2.6% of cesium, and approximately minus 10 to the power minus 18 of francium. So these are the some physical properties of this group number 1 elements. So dear student, when physical property question comes, so these physical properties generally means what is the atomic size, atomic radius, ionic radius, melting point, boiling point, occurrence, density. Yeah, density I have learned. So the density, if I talk about the lithium, that is 0.53 gram per centimeter cube, sodium 0.97 gram per centimeter cube, potassium 0.86 gram per centimeter cube, rubidium 1.53 gram per centimeter cube, and the cesium, if I talk about, that is 1.90 gram per centimeter cube. So these are the physical properties of this group number 1 element. Now we will discuss about the chemical properties. Chemical properties means you know very well what is chemical properties. Can you tell me what is the meaning of chemical properties? Chemical properties means reaction with elements, right? So there will be changes. So these are the physical properties of group number 1. If you have doubt related to the physical properties, sir, I am having doubt in ionization enthalpy or hydration enthalpy, you can drop your doubt into the comment box section. Now we are moving towards chemical properties. So now let's discuss about the chemical properties. Chemical properties means reaction, right? Chemical properties. First of all, you know very well when we start the chemical properties, we do the reaction with air of any elements or any groups. So reactions with air. Can you tell me that all the alkali earth metals from lithium to cesium, if they react with air, what will happen? Can you say me? What are the reaction products? So the reaction with air means that you can say the reaction with oxygen. Air means here O2, okay? Don't understand the other gases except O2. So here if I talk about that what happens when alkali earth metal reacts with O2. So first of all, let me tell you, the alkali metals tarnish in dry air due to the formation of their oxide, which in turn reacts with moisture to form hydroxide. They burn vigorously in oxygen, forming the oxide. Lithium forms lithium monoxide, sodium forms sodium peroxide, and other metals also form superoxide. Superoxides O2 minus ion unstable to form the presence of large cations such as potassium, rubidium, and cesium. So first of all, what are the elements present in first group elements? Alkali metals like from lithium to cesium. Lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. If I react lithium with O2, what will we get? You know, if we react with lithium plus O2, we get lithium oxide, Li2O. Li2O. If we want to balance the reaction, since there are 2 oxygens, so here 4 lithium plus oxygen. But if I talk about when sodium reacts with oxygen, sodium peroxide. Right now only I informed you, if the sodium reacts with
oxygen, it gives you sodium peroxide. What is the formula of sodium peroxide? Na2O2, right? So you can see here there are 2 nitrogen and 2 oxygen. Can you tell me how to balance the reaction? Here we will just put 2. And now potassium, rubidium and cesium, superoxide, as right now they are informed you, these 3 will be formed superoxide, this peroxide and this is monooxide. Lithium will give you the monooxides, sodium will give you peroxide, and the potassium, rubidium and cesium will give you superoxides. Superoxide means MO2 means KO2. Superoxide, potassium dioxide, rubidium dioxide and cesium dioxide. These are superoxides. What are these? Superoxides. So first reaction was with air. If anybody will ask you in the chemical reaction what you have done, then you can say the reaction with air means the reaction with O2. If the lithium reacts with oxygen, it gives you the monooxide. Sodium reacts with O2, it gives you sodium peroxide. And potassium, rubidium, cesium reacts with O2, it gives you the superoxide. So in all these oxides, the oxidation state of alkali metal will be +1. Lithium show exceptional behavior in reacting directly with nitrogen of air or nitrogen of air to form lithium nitride Li3N, as well as because of their high reactivity towards air and water, alkali metals normally kept in the kerosene oil. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि पहला रिएक्टिविटी सीरीज था जिसमें सिर्फ एक लिथियम नाइट्रोजन को छोड़कर गैस में बाकी जितने भी एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, अगर लिथियम को हम नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो ये हमें Li3N लिथियम नाइट्राइड, जो यहाँ पर अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम हियर, तो आप जनरली कहोगे सर लिथियम का तो +1 ही है। तो लेकिन हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्टली ये रिएक्शन करता है बाकी सारे अल्कली अर्थ मेटल्स की जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +1। रिमेंबर द वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। द व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स यू +1। तो बाकी इन सबको हमेशा याद रखना, ऑल द अल्कली मेटल्स, all alkali metals are reactive with, are very reactive, not reactive only, are very reactive with water and air, O2 and H2. हमेशा याद रखना, जो alkali metals are very reactive with oxygen and H2. Okay. So now there is one question in NCERT. What is the oxidation state of potassium in KO2? हाँ, देखो यहाँ पर पोटाशियम का KO2 में जनरली पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन लग रहा है 1 होगा और पोटाशियम का 2 लग रहा है, राइट? देयर आर सुपर ऑक्साइड स्पीशीज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज O2-। यहाँ पर O2- सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम विल बी +1। हमेशा याद रखना, यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, तो यहाँ पर पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। पूरे जितने भी रिएक्शंस हैं सारे अल्कली अर्थ मेटल्स के रिएक्शन जो है +1 है। So this was the reaction with air. Now I will talk about the reaction with water, not air. Second question will be reaction with water. What we get if we do reaction with water is, have you ever thought that if we do reaction with water, what are the things we are going to get? अगर हम अल्कली मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? What we'll get in the formation as in the form of product. If we react alkali metals with water, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वाटर के साथ। तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, reactivity towards the water, the alkali metal reacts with water to form hydroxide and dihydrogen. It may be noted that although lithium has most electronegative value, its reaction with water is less vigorous than the other, like sodium, which is the least negative value among all the alkali metals. This behavior of lithium is attributed to its small size and very high hydration energy. Other metals in the group of react exclusively with water
they are also reacting with the proton donors such in the alcohol, gaseous, ammonia and alkyls. So first of all, let me show you reaction with water. Water means H2O, right? H2O, 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 H2O. So first of all, yeah, lithium is having a very small size, right? Generally, if we talk about all the metals, these all are alkali earth metals. So if we talk these all metals plus H2O, then it will give you metallic hydroxide and hydrogen gas. What it will give you? M plus OH minus. If we do the reaction, then it will be just dissociating into metal in the form of cation, hydroxide in the form of anion, and H2 gas will be released. General reaction, okay? In the general reaction, if I talk about, but in the case of lithium, remember dear student, lithium has most negative value. Most electronegative value means in this all this whole group number 1. Lithium has the highest electronegative value. So if we do the reaction with water, it will be less vigorous than the sodium. And the sodium, which has the least electronegative value among all the alkali metals, thus behavior of lithium will be attributed towards the small size and very high hydration energy in other groups. Generally, you should remember, dear students, that how it will be breakdown. These all are metal means lithium will dissociate into lithium plus hydroxide minus and H2O. But here, if we talk about it will give you. If we talk about any salt, then lithium chloride in 2H2O, which I have already informed you in lecture number 1 in the form of hydration. So here all the metals is represented as M here. In the form of M, you can take as sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay? ये सारे M के बराबर है. यहाँ पर आप सोडियम लीजिएगा, पोटाशियम लीजिएगा, रुबिडियम लीजिएगा, सीजियम लीजिएगा. तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस और H2 गैस. अगर इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो चारों साइड हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा. 2 मेटल, 2 वाटर, 2 मेटल प्लस 2 हाइड्रोक्साइड माइनस. मतलब अब तुम्हारा रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के गैस के लिए जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा था वो अनबैलेंस था, तो यहाँ पर रिएक्शन तुम्हारा क्या हो गया? बैलेंस. यहाँ पर सारे के सारे अल्कली अर्थ मेटल जो है प्रोटॉन डोनर्स हैं. तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि जैसे अल्कोहल में आपको पता है गैसियस, अमोनिया में और अल्काइल्स में भी प्रोटॉन डोनर का काम करता है. तो ये था हमारा रिएक्शन विथ वाटर. मींस lithium plus hydroxide minus H2 gas, sodium plus hydroxide minus H2 gas, potassium plus hydroxide minus H2 gas, rubidium plus hydroxide minus and hydrogen gas, cesium plus hydroxide minus and H2 gas. तो सारे का रिएक्शन मैंने एक जगह लिख दिया है. यहाँ पर M के बदले आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो ये था हमारा रिएक्शन विद वाटर. अब हम लोग करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन. H2 के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? What will be the product if we do the reaction of all the alkali metals with hydrogen, right? अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, all the alkali metals react with H2 at about 673 temperature. लिथियम को छोड़ करके, लिथियम 1073 पर होता है, to form the hydrides. All the alkali metal hydrides are ionic solids with the high melting point. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको डाइहाइड्रेट्स का मतलब हो गया H2, ठीक है? अगर लिथियम को H2 के साथ रिएक्शन, सोडियम को H2 के साथ रिएक्शन, पोटेशियम को H2 के साथ रिएक्शन, रुबिडियम को H2 के साथ, सीजियम को, तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड NaH, पोटेशियम हाइड्राइड KH, रुबिडियम हाइड्राइड RbH, सीजियम हाइड्राइड CSH. रिएक्शन बोलोगे कि सर हाँ यहाँ पर रिएक्शन तो अनबैलेंस है, सो नो नीड टू वरी डियर स्टूडेंट. यहाँ सबके आगे में 2 लगा दो, 2 2 2 2 2 और यहाँ पे भी तुम जो है 2 लगा दो, तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा. हाँ, यहाँ पे बस याद क्या रखना है, यहाँ पर लिथियम प्लस और हाइड्राइड माइनस, ओके? सोडियम प्लस हाइड्राइड माइनस, पोटेशियम प्लस हाइड्राइड माइनस, रुबिडियम प्लस हाइड्राइड माइनस, सीजियम प्लस और हाइड्राइड माइनस. तो जब भी हम अल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन का मतलब डाइहाइड्रोजन H2, H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर मेटल कैटायनिक फॉर्म में और हाइड्रोजन एनायनिक फॉर्म में टूटेगा. तो ये था हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन. अब नेक्स्ट रिएक्शन हैलोजेंस के साथ हम लोग करेंगे.
हैलोजेंस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? रिएक्शंस विद हैलोजन। तो अब मुझे बताओ तुम लोग, अगर हम हैलोजन के साथ इस पूरे अल्कली मेटल्स को रिएक्शन करेंगे, किसके साथ? हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब आप लोगों को पता होगा, रिएक्शंस विद हैलोजेंस। हैलोजेंस में आपका फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक आता है, राइट? ये सारे हैलोजेंस है, मतलब F2 Cl2 Br2, मतलब सारे X2 के फॉर्म में। हम सीधे सीधे यहां पे लिख देता हूं कि X2 का मतलब सारा हैलोजेंस हो गया, फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक, ओके? तो अगर हम इसको X2 के साथ रिएक्शन करेंगे, X2 का मतलब फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक, मतलब जितने भी अल्कली मेटल्स है, अगर हम उसको हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो विगरसली रिएक्शन करेगा हैलोजेंस के साथ और आयनिक हैलाइड के रूप में टूटेगा। तुम लोगों को पता होगा सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, राइट? तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो है LiX के फॉर्म में, LiX, NaX, KX, RbX, CSX, मतलब ये जब टूटेगा मतलब लिथियम प्लस और X माइनस, सोडियम प्लस X माइनस, ठीक है? तो ये हम लोगों को याद रखना है कि कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में ये हैलोजेंस, X का मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब्स्टिट्यूट, ओके? So the alkali metals readily react vigorously with the halogens to form the ionic halides like M plus and X minus. However, lithium halides are somewhat covalent. हाँ, यहाँ पर कोई पूछेगा तुमको कि यहाँ पर जो bonds होंगे वो कौन से bonds होंगे? तो लिथियम हैलाइड का थोड़ा मोड़ा कोवेलेंट होगा, बाकी जितना भी है आयनिक बॉन्ड्स होंगे। तुमको पता है सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, राइट? सो एक्सेप्ट लिथियम ऑल आर आयनिक। अब पूछोगे क्यों सर लिथियम का क्यों होता है? सो एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ द electronegative elements of halogens. It will give you the distortions of electron clouds towards the anion, but it is a very small size and has a high tendency to distort the electron clouds around the negative halides ion. Since anion with a large size, it can easily distort it around the halides. Lithium iodide is the most covalent in nature. हाँ, यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि सर ये हैलाइड्स में से लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इसमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? तो ये हमेशा याद रखना बच्चों। क्यों होगा वो भी बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, लिथियम का साइज बहुत ही छोटा होगा। तो तुमको पता होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये जो लिथियम फ्लोराइड है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा डिस्टॉर्टेड होगा। क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन, लेकिन आयोडीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आयोडीन के साथ ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था हमारा रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब हम लोग बात करेंगे हैलोजेंस के बाद किसके बारे में? बताओ आप किसके साथ रिएक्शन करना चाहते हो? किस किस के साथ? हमने क्या? O2, H2O, H2 और उसके बाद में X2। X2 का मतलब यहाँ पर हैलोजन। अब हम लोग करेंगे रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर मतलब समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड्यूसिंग नेचर? रेड्यूसिंग नेचर का मतलब हो गया कि मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी कब लूज करती है। मेटल्स अपनी प्रॉपर्टी कब लूज करती है, दैट इज कॉल्ड रेड्यूसिंग नेचर। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, lithium being the most and sodium the least powerful. The standard electrode potential, which measures the reducing power, represents the overall charge. अगर कोई भी मेटालिक मतलब सॉलिड से अगर गैस है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन, याद होगा तुम लोगों को सब्लिमेशन, याद है सब्लिमेशन? शायद याद हो तुम लोगों को। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जितना भी मेरा अल्कली मेटल्स है वो किस तरह से रेड्यूस होगा, तो मेटल सॉलिड जितने भी होंगे उनको गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ऑल द सॉलिड मेटल्स टू मेटालिक इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, दैट विल बी कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन मतलब कि मेटल सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे।
तो अब तुम लोगों को पता है कि ये कैसे होगा। सबसे पहले मेटल को गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा, और मेटल गैसियस स्टेट से तुमको पता है कि मेटल प्लस गैसियस स्टेट और 1 इलेक्ट्रॉन ये डिसोशिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ केटायन। तो इसको कहेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तुम्हें पता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो तुम कि ये गैसियस स्टेट से इसको हमने केटायन फॉर्म किया है। अब अगर गैसियस स्टेट में हमने वाटर के साथ रिएक्शन, ये जो M+ है मेटल जो भी है, अगर इसको हमने H2O के साथ रिएक्शन कर दिया, अब बताओ क्या होगा। ये सबसे पहले तो आयोनाइजेशन फॉर्म में है, तो अगर हम आयोनाइजेशन फॉर्म में इसको H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो बहुत सारे मेटल्स जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में और बहुत सारे मेटल जो है M+ फॉर्म में, क्योंकि पानी के साथ जाएंगे तो लिथियम के अलावा सब जो है मेटल प्लस ही रहेंगे, क्योंकि वाटर में तुमको पता है कि कोई भी कंपाउंड को हम लोग डालते हैं तो वो सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है। लिथियम जो है क्या करेगा, अपना हाइड्रेटेड फॉर्म बनाने का, LiCl2 तो लिथियम जो है अपना हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर तो था आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन वाटर में जाकर के M+ टूटा, इसीलिए ये जो वर्ड है दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज तुम देख रहे हो ऊपर में जो एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू गैसेस एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, hydration energy, the minimum energy required to convert metals into metallic ion, metal positive ion, that's called hydration energy. With all the small size of lithium have the highest hydration enthalpy, which account for its high electronegative value and its high reducing agent. तो सबसे ज्यादा कोई पूछेगा कि भाई ये पूरे में लिथियम से लेकर के सीजियम तक कौन कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होता है, तो लिथियम का, याद रखना। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में 10.2, द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल फॉर Cl2 क्लोरीन आयन का +1.36, आयोडीन का I2 और I- का +0.53, सिल्वर प्लस और सिल्वर का +0.79, सोडियम प्लस और सोडियम का -2.71, लिथियम प्लस और लिथियम माइनस का -3.04। आपको ये सारे के सारे अरेंज करना है आयनिक स्पेसीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पर 4-5 दे दिया है, आयोडाइड माइनस सोडियम सिल्वर, क्लोराइड माइनस लिथियम सोडियम। तो तुमको पता है कि सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, लिथियम का, उससे कम सोडियम का, उससे कम आयोडीन का, सबसे कम क्लोरीन का, और उससे कम, उससे ज्यादा जो है क्लोरीन से ज्यादा सिल्वर का। तो ये था 10.2। अब आ जाइए सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया मतलब समझते हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अगर हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली रिएक्शंस ही होते हैं, तो अगर एक लास्ट रिएक्शन है कि जितने भी हमारे पास अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, अगर इन सब अल्कली अर्थ मेटल्स का अब हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, नॉट गैसियस अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, बता सकते हो। ये जो है सबसे पहले कंपाउंड की तरह ये टूटेगा। ये डिपेंड करता है कौन सा अल्कली मेटल है जिसको हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्व करने के बाद वो किस तरह का सॉल्यूशन बन रहा है, चाहे वो कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेटल्स हैं, मेटल्स जो है जनरली कंडक्टिंग ही होते हैं। तो जैसे ही हम अल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिप करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो डीप ब्लू हो जाएगा, और वो जो है क्या होगा, दैट विल बी कंडक्टर इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको कह दूं ये हमारा अल्कली मेटल्स है, और लिक्विड के फॉर्म के लिए यहाँ पर X+Y NH3 लिखाऊं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो तुमको पता चल जाएगा यहाँ पर। X+Y NH3 कहने का मतलब यहाँ पर, अब तुम्हें ये जैसे ही पानी में तुम डुबोगे तो क्या बनेगा पता है, ये जो है MnH3X+, MnH3X+, और देखो यहाँ पर ये जो केटायन और एनायन वाली बात होती है ना, वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, कि ये नंबर x हो गया कि कितने मॉलिक्यूल्स है अमोनिया।
चलो मान लो यहाँ पर x, ठीक है, कि मतलब हेक्सा अमोनिया है, टेट्रा अमोनिया है, कितने अमोनिया है। और जो दूसरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं, तो ये ENH3Y- हो जाएगा। ENH3Y-, मतलब ये कैटायन, ये एनायन। तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, x प्लस वाई। ये x और y मैं तुमको बता देता हूँ, नंबर ऑफ अमोनिया फॉर कैटायन, नंबर ऑफ अमोनिया फॉर एनायन। ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन मैंने अभी बताया तुमको, यहाँ पर डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम किसी भी अल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डुबोते हैं तो वो सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। तो ये सॉल्यूशन क्यों ब्लू कलर का होता है वो बता देता हूँ। ये जो अमोनिया है उसका जो अमोनिटेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और वो दिखते जब लाइट उसके ऊपर में पड़ता है, actually the ammoniated electrons which absorb energy in the visible region of light and thus imparts the blue color of the solution. The solutions are paramagnetic and on standing slowly liberate the hydrogen resulting in the formation of anode. अब ये इलेक्ट्रोड और की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप का करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, तो यहाँ पर ये हमें हाइड्रोजन गैस देगा। किस तरह से हाइड्रोजन गैस देगा मैं बता दूँ। ये कोई भी मेटल है, मेटल प्लस और इलेक्ट्रॉन में जो NH3 है, अमोनिया पे हमारा लिक्विड स्टेट में है, अगर हम इसको डिप करते हैं सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोलाइसिस पास करते हैं तो तुमको मैं बता देता हूँ ये MnH2 क्या बनेगा, MnH2, ये अमाइड आयन बन जाएगा। मतलब तुम्हें ये चीज समझना है, ये अमोनिया जो है एमाइड आयन बन जाएगा, MnH2 और हाफ हाइड्रोजन गैस। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये मेटालिक एमाइड जो है कि अमोनिया का सॉल्यूशन यहाँ पे डिनोट करेगा कि इसमें कितने कंसंट्रेशन है। ब्लू कलर जो है किस कलर में चेंज हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, ब्लू कलर ब्रोंज कलर में चेंज होगा और ये डायमैग्नेटिक होगा। जनरली ये सॉल्यूशन जो है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर हम उसको इलेक्ट्रोलाइट करते हैं तो ये वापस हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो तुम्हें दो चीज मिल गया, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अगर हम अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें दो चीजों का ज्ञान मिल जाता है कि अगर लिक्विड अमोनिया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे, और अगर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कर लेते हैं तो एमाइड आयन और हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होगा तो वहां पे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है डायमैग्नेटिक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, द यूजेस ऑफ अल्कली अर्थ मेटल। क्या यूजेस है, तो हमने अभी क्या सा पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा और यूजेस पढ़े, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से लेकर के एटमॉस्फेयर में जो एग्जिस्टेंस है वहां तक। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस विद एयर से लेकर अमोनिया तक। अब हम लोग यूजेस के बारे में कुछ बताएंगे। लिथियम मेटल जो है जनरली तुम लोग देखते होंगे, जो मोबाइल का बैटरीज होता है लिथियम प्लस आयन के फॉर्म में होता है, राइट। So you can say lithium metal is used to make useful alloys, for example with the lead to make white metal, bearing for motors engine, with the aluminum to make aircraft parts, and magnesium mixed with make armor plates. It is also used in the thermonuclear reactions. Lithium is also used to make electrochemical cells. Sodium is used to make sodium and lead alloy needed to lead ET4 and lead Me4. These organoid compounds were earlier used as anti-knock additives to petrol, but nowadays vehicles use lead-free petrol. Liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactants. Potassium plays a vital role in biological system. Potassium chloride is used as a fertilizer. Potassium hydroxide is used as a manufacturer of soft hydroxide, or you can say it is also used as a soap. It is also used as an excellent absorbent of carbon dioxide. Cesium is used in devising the photoelectric cells. So प्यारे बच्चों, यूजेस की बात करें तो तुमने देखा लिथियम से लेकर के सीजियम तक का जो यूजेस है
अलग अलग चीज़ों में, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, कुछ जो है तुम्हारे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, कुछ जो है तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं हमारे अल्कली अर्थ मेटल्स का। पहले ज़माने में जब लोग डीजल या पेट्रोल यूज़ करते थे तो उस समय में ये फ्री नहीं होता था, लेकिन अभी जो है लेड फ्री पेट्रोल्स आते हैं जो हम लोग अपने व्हीकल्स में डलवाते हैं। तो ये सारी एक नई क्रांति थी जो अल्कली मेटल्स के प्रॉपर्टीज जानने के बाद हम लोगों ने उसको रिमूव किया और उसके बारे में डिस्कशन किया। तो तुम लोग सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लो, 1 मिनट पॉज करो और अपने नोटबुक में लिखो कि आज तुमने क्या सब पढ़ा। जो जो पढ़ा है वो तुम अपने नोटबुक में लिख लो। चलो मैं रिवाइंड कर देता हूं तुम लोगों ने क्या सब पढ़ा। आज सबसे पहले हम लोगों ने अल्कली मेटल्स के बारे में जाना, जो लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड लास्ट वाला जो है फ्रांसियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम से लेकर सीजियम तक अल्कली अर्थ मेटल्स है। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने एक टेबल बनाया जिसमें जितना बोर्ड पे था वो तुम लोगों को जैसे बताया कि उसका एटॉमिक सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मेटालिक रेडियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। उसके बाद मैंने बताया तुम लोगों को डेंसिटी क्या है और ये कितने परसेंटेज लिथियम लिथोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीजन O2 के साथ, फिर H2O के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर हैलोजेंस के साथ, लास्ट में अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन किया। उसके बाद हमने यूजेस के बारे में पढ़ा कि लिथियम से लेकर के सीजियम के क्या क्या यूजेस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो एक बार आंख बंद करके रिवाइंड करना कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। रिएक्शंस को फिर 2 बार 3 बार नोटबुक में प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे सारे रिएक्शंस मैकेनिज्म तुम्हारे माइंड में स्थिर हो जाएंगे। That's all for today. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you very much.